الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ساری تعریف، ہر قسم کی بڑائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری دنیا کا انتظام کرنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نیک بندوں پر، خاص کر ہم تمام کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر انسان اللہ کی عبادت کرے، دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، تو انسان کی ساری زندگی، انسان کا سارا تگ و دو، ساری محنتیں عبادت ہو جاتی ہیں. ان کا ہر کام عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اس کام کو اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرے. انسان اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرتا ہے، جتنی عبادت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی قریب ہوگا. انسان کا اللہ سے تعلق اتنا ہی مضبوط ہوگا. انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر اپنے آپ کو اپنے رب سے، اللہ سے، اپنے خالق سے تعلقات کو مضبوط کرے. ہر غم، ہر خوشی، ہر مصیبت اور ہر پریشانی کے موقع پر انسان کو اللہ ہی سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا ایک مضبوط سہارا سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان کا سب سے بڑا مضبوط سہارا، سب سے زیادہ انسان کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ اسے اپنے رب سے ہو جانا چاہیے. جب انسان اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو دنیا کی ساری تعلقات اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے.
رب سے کسی کا تعلق مضبوط ہو جائے، رب سے اس کو محبت ہو جائے، رب کا ڈر اگر اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے سارے معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی کسی طاقت سے اس کے دل کے اندر ڈر نہیں پیدا ہوتا ہے، سارے مسائل اس کے آسانی کے ساتھ حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنے تعلقات کو اپنے رب سے مضبوط بنایا، انہوں نے اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر لوگ اس کے دشمن بن گئے، ان کی جان کے درپے ہو گئے، ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ اس کے باوجود چونکہ ان کا تعلق، ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط تھا، اس لیے کوئی نقصان ان کو نہیں ہو سکا۔ ہر موقع پر انہوں نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے دوسرے بھائیوں نے موت کے کنویں میں ڈال دیا۔ بھائیوں نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے ابو جان، ہم لوگ کھیل رہے تھے، درندے نے آ کر یوسف کو کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ میرے ان بیٹوں کی جھوٹی داستان ہے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک من گھڑت واقعہ گھڑ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس غم کے موقع پر، اس مصیبت کے موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے جو کچھ کہا وہ یہ کہ واللہ المستعان، واللہ المستعان، اس مصیبت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا مددگار ہے، ہماری مدد کرنے والا ہے۔ جو باتیں تم کہہ رہے ہو ان باتوں پر اللہ تعالی ہی کو میں اپنا مددگار اور اپنا پرسان حال سمجھ رہا ہوں۔ اور آخر یہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا، صحیح سالم رکھا۔ بھائیوں نے تو اس کو موت کے کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچانا چاہا تو یعقوب کے بڑھاپے کا سہارا وہی یوسف علیہ السلام بنے۔ جب وہ تخت پر فائز ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات اپنے بیٹے سے کروائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو لے لیجئے، جب ایک معمولی سی غلطی پر، ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد پر جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں موجود ہے، سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، اس تاریکی کے اندر، مچھلی کے اس پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اگر کسی کو اپنا مددگار، کسی سے اپنا تعلق انہوں نے اگر جوڑا تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں اندازہ لگائے کتنی بڑی مصیبت ہے، ایک تو سمندر ہے، سمندر کی گہرائی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، وہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں، لیکن وہاں پر بھی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب سے تعلق جوڑا۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ رب العالمین نے اس سمندر سے، مچھلی کے اس پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کے باہر آنے کا، نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، بیماری نے ان کو کھا لیا ہے، جسم کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے ہیں۔ کیڑے اگر جسم سے باہر نکل کر آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اپنے جسم کے اندر رکھ لیا کرتے تھے۔ ایسی بیماری کے موقع پر، ایسے مصیبت کے موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے
किसी दूसरे से शिकवा नहीं किया, दूसरे से उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि उस बीमारी के आलम में भी, उस बीमारी से नजात पाने के लिए भी उन्होंने अपने रब से कहा, रब्बी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन, कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ बारे इलाहा, तू अच्छी तरह जानता है कि बीमारी ने मुझे घेर लिया है, बीमारी मुझे आ पहुंची है, बीमारी का मैं शिकार हो चुका हूं, बीमारी के जाल में मैं फंस चुका हूं। व अंता रहमुर राहिमीन, इस आलम के अंदर भी, इस बीमारी के वक्त भी, जबकि कोई दूसरा रास्ता नहीं लेकिन तुझसे, लेकिन तेरी जात से मुझे पूरी उम्मीद है कि तू बड़ा रहम करने वाला है। तेरी रहमत से, तेरे करम से, तेरी रहमत से, तेरी करम फरमाई से मैं मायूस नहीं, मैं तेरी जात से पूरी उम्मीद रखता हूं कि इस आलम के अंदर भी, इस मुसीबत के मौके पर भी, इस बीमारी के आलम में भी अगर तू चाहे तो मुझे नजात दे दे, तू मुझे शिफा दे दे। देखिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंदुरुस्त बना दिया। तो अलगरज ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तारीख है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तारीख, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी इस बात को बताती है कि इंसान पर अगर कोई मुसीबत आए, इंसान अगर कोई काम करना चाहे, दीन का हो, दुनिया का हो, किसी भी मामले का कोई भी काम हो, रास्ते के अंदर अगर दुश्वारी आती है, परेशानी आती है, इंसान उन परेशानी को देखते हुए दूसरों के सामने हाथ फैलाने के बजाय, दूसरों से मदद तलब करने के बजाय उसे चाहिए अपने रब से अपने ताल्लुक मजबूत करे। जितना हमारा ताल्लुक हमारे रब से होगा, हमारे लिए उतने ही रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो रब से ताल्लुक इंसान का मजबूत होना चाहिए और एक बंदे मोमिन का तो और ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कि हमारा ईमान है कि इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया आने वाली है। इस दुनिया के अंदर हम आए हैं इसलिए ताकि दूसरी दुनिया के लिए हम तैयारी करें, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत भी बनाया, जहन्नम भी बनाया। इस दुनिया में हम जहन्नम से आजादी हासिल करने और अल्लाह की तैयार करदा जन्नत में दाखिल होने के लिए यहाँ पर सामान तैयार करने आए हैं। लिहाजा हमें इस दुनिया के अंदर अपने ताल्लुक को रब से मजबूत करना चाहिए। जब हम अपने ताल्लुक को अपने रब से मजबूत करेंगे, रब से हम जितना करीब होंगे, रब्बुल आलमीन हमसे उतना ही ज्यादा करीब होगा। बल्कि एक हदीस के अंदर आता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान अपने रब की तरफ आगे बढ़ता है, चलकर आता है, एक बालिश आता है, रब्बुल आलमीन उसकी तरफ एक हाथ आ जाते हैं। जब इंसान अपने रब की तरफ एक हाथ आगे बढ़ता है, रब्बुल आलमीन पूरा एक गज यानी उससे डबल उससे करीब हो जाता है। जब बंदा अल्लाह की तरफ चलकर आता है, रब्बुल आलमीन उसकी तरफ दौड़ कर आता है। अंदाजा लगाएं कि हम अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत करेंगे, अल्लाह ताला हमसे उतना ही ज्यादा करीब होता जाएगा। बल्कि एक दूसरी हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान अपने रब से करीब होता है, मुख्तलिफ इबादतों के जरिए, फराइज के जरिए, नवाफिल के जरिए अपने रब से करीब होने की कोशिश करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को चाहने लगता है, उस बंदे से करीब हो जाता है। मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा बंदा मुझसे करीब होता है नवाफिल के जरिए, फराइज के जरिए, यहां तक कि मैं उसको चाहने लगता हूं, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं तो मैं उसका कान बन जाता हूं। फ़इदा अहबब्तु कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, जब मैं उसको चाहने लगता हूं तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, और मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। और मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है।
फिर वो मुझसे जो सवाल करता है मैं उसके सवाल को जरूर पूरा करता हूँ। वो मुझसे मांगता है तो मैं उसको अता करता हूँ। वो मुझसे पनाह तलब करता है मैं उसको पनाह देता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से, यह हदीस कुदसी है, अंदाजा लगाएं कि कितनी मोहब्बत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसान को मिलती है जब इंसान रब की इबादत के जरिए, फराइज के जरिए, नवाफिल के जरिए, दूसरी इबादतों के जरिए अपने रब से करीब होता है। तो रब्बुल आलमीन इंसान से कितना करीब हो जाता है। प्यारे नबी की इस हदीस से ये मालूम होता है कि जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से करीब होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पूरे जिस्म का, जिस्म के सारे आज़ा का अल्लाह रब्बुल आलमीन निगरान बन जाता है। जिस्म के सारे आज़ा अल्लाह की निगरानी में हो जाते हैं। उसके हाथ, उसके पांव, उसकी आंख, उसके कान, ये सब के सब अल्लाह की हिफाजत में चले जाते हैं। मतलब ये हुआ कि उसके हाथ वही काम करते हैं जो अल्लाह चाहता है, उसके कान वही सुनते हैं जो अल्लाह चाहते हैं, उसकी आंख वही देखती है जो अल्लाह चाहता है, उसके पांव उसी रास्ते की तरफ उठते हैं जिस रास्ते को अल्लाह पसंद फरमाते हैं। तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला से ताल्लुक अगर हमारा होगा तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। और जब अल्लाह की मोहब्बत हमको हासिल हो जाएगी तो दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो नाक रगड़ कर रह जाए, अगर वो हमको तकलीफ पहुंचाना चाहे, अल्लाह की हिफाजत में हम अगर चले जाएं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के जुल्म सितम से परेशान होकर अल्लाह ताला की इजाजत से बनी इसराइल को लेकर निकलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह बता दिया जाता है, इन्नकुम लमुत्तबऊन, क्या है मूसा तुम बनी इसराइल को लेकर निकलो, लेकिन याद रखो तुम्हारा पीछा किया जाएगा, तुम्हारे पीछे दुश्मन आएंगे, तुमको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। इन्नकुम लमुत्तबऊन, तुम्हारा पीछा किया जाएगा, बता दिया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत करते हैं, अपना रिश्ता गहरा करते हैं। उससे पहले ही जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देना चाहा, जादूगरों की एक पूरी टीम को बुलाया। इलाके के अंदर, पूरे शहर के अंदर जादू के जो बड़े बड़े माहिरीन थे, जो अहले फन थे, जादू के फन से वाकिफ थे, ऐसे सारे फनकारों को जमा किया गया। एक मैदान के अंदर फनकार मौजूद हैं, जादू के फन जानने वाले मौजूद हैं, समाज के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन उस मौके पर जबकि जादूगरों ने अपने जादू के जरिए बड़े बड़े अजदहे को जमीन पर रेंगते हुए लोगों के सामने तैयार कर दिया, लोगों के सामने अजदहे रेंग रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा डर तो जरूर महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने उस मौके पर जबकि जादू के जानने वाले माहिरीन मौजूद हैं, उन्होंने अपने करतबों के जरिए, अपने फन के जरिए जमीन के ऊपर बड़े बड़े अजदहे को रख दिया। समाज के लोग मौजूद हैं, लेकिन उस मौके पर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया, रब से उनका ताल्लुक मजबूत था। रब्बुल आलमीन ने उस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अलक़ी मा फी यमीनिक या मूसा, ऐ मूसा तू क्या देख रहा है, तू क्यों घबरा रहा है, तेरा ताल्लुक तो मेरे से मजबूत है, तू तो हमारे ऊपर ईमान रख रहा है, तू तो हमारा नबी है। अलक़ी मा फी यमीनिक, तेरे दाएं हाथ के अंदर जो लाठी मौजूद है, जो लाठी जिसको तू लाठी समझ रहा है, तू जमीन पर डालकर तो देख ले कि इसका क्या करतब होता है। मूसा अलैहिस्सलाम उस लाठी को अब तक लाठी ही समझ रहे थे, पत्ते झाड़ने, जमीन खिखरने का एक आला समझ रहे थे। लेकिन अंदाजा लगाए, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से ताल्लुक को मजबूत किया। अजदहे मौजूद हैं, बड़े बड़े सांप मौजूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को उस लाठी की हकीकत मालूम नहीं थी। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह का हुक्म हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पर रखा,
फिर वो लाठी बड़े सांप बनकर, जितने अजदहे बड़े बड़े सांप थे, सारे सांपों को एक एक करके निगलना शुरू कर दिया, यहां तक कि सारे सांप निगल गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत उस मैदान के अंदर और फिरौन के जादूगरों की शिकस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करवाई। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकल गए, 20 समंदर के अंदर मौजूद है। पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन पूरी लश्कर के साथ आ रहा है, फिरौन पूरे लश्कर के साथ आ रहा है। बनी इसराइल ने देखा, मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा तू हम लोगों को कहां लेकर के आ गया? हम तो मिस्र की जमीन में थे, वही हमारे लिए बेहतर था। फिरौन हमको मारता था, सजाएं देता था, तकलीफ देता था, 2 वक्त की खाना तो जरूर देता था। हम किसी भी तरीके से वहां जिंदगी तो गुजार रहे थे, लेकिन बीच समंदर में तुम लेकर आ गए। अब समंदर के उस पार जाने के लिए हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, यानी समंदर के अभी समंदर में गए, समंदर में जा रहे थे, पीछे लश्कर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी देखकर कुछ परेशानी हुई, लेकिन फौरन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्न रब्बी सयहदीन, कि घबराने की जरूरत नहीं, हमारा रब हमारे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका रब था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब फिरौन उसकी पूरी लश्कर 20 समंदर के अंदर गई और मूसा अलैहिस्सलाम पूरे बनी इसराइल को लेकर समंदर के उस पार गए और फिरौन पूरे लश्कर के साथ 20 समंदर में पहुंचा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से पानी मिल गया और पूरा फिरौन और उसकी पूरी लश्कर, उसकी पूरी फौज 20 समंदर के अंदर गर्क हो गई। तो मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, बताना यह है कि रब्बुल आलमीन की मदद उस वक्त आती है जब इंसान अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत करे। अपने रब से ताल्लुक को मजबूत करने का एक बेहतरीन जरिया रब की मारिफत है। अगर हम रब को पहचान लें, रब की मारिफत हासिल कर लें, रब को अगर पहचान लें, तो फिर रब से हमारा ताल्लुक मजबूत करने का हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक सहाबी जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज का अमीर बनाया, एक फौज का जिम्मेदार बनाया, पूरी फौज को लेकर वो निकले। रास्ते में जब भी नमाज का मौका आता तो नमाज पढ़ाते हुए सूरतुल इखलास की तिलावत वो जरूर करते थे। हर नमाज के अंदर जब कोई सूरत पढ़ते तो सूरत के आखिर में सूरतुल इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद, जिसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की अस्मा व सिफात, अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह ताला की तौहीद का तज़किरा किया गया है। वो सहाबी हर नमाज के अंदर हर रकत के आखिर में वो जरूर पढ़ा करते थे। लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अल्लाह के नबी, आपने इसको तो अमीर बना दिया है, लेकिन जब देखो तो ये सूरतुल इखलास की तिलावत करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा, उस अमीर से पूछा कि आखिर मामला क्या है? तो उस अमीर ने कहा कि इन्नहा सिफतुर रहमान, मैं ये सूरत इसलिए पढ़ता हूँ, मैं ये सूरत इसलिए तिलावत करता हूँ, हर नमाज के साथ इस सूरत को मैं जरूर इसलिए पढ़ता हूँ कि इसके अंदर सिफात यानी अल्लाह ताला के सिफात का तज़किरा किया गया है, रब की तौहीद का जिक्र किया गया है, अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात को बयान किया गया है। मैं अपने रब को चाहता हूँ, रब से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं इस सूरत को हर सूरत के आखिर में हर नमाज के साथ मैं जरूर पढ़ता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा कि तू रब से मोहब्बत करता है, रब तुझसे मोहब्बत करेगा। जो रब से मोहब्बत करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत करता है। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत अगर हमारे दिल के अंदर आ जाए तो अल्लाह ताला का ताल्लुक हमारे दिल के अंदर अगर पैदा हो जाए तो फिर हमको अपने रब से मोहब्बत करने और रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करने लगेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो मौका दिया है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस मोहल्ले के अंदर अब ये एक मस्जिद जो कि अल्लाह का घर है, जैसा कि इससे पहले बताया गया था कि यह अल्लाह का घर है, इस घर को आबाद रखना, इस घर को अपने जिक्र अस्कार के जरिए
قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اور دوسرے عبادتوں کے ذریعے اس گھر کو آباد رکھنا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اگر مومن ہیں، ہمارے دل کے اندر اگر ایمان ہے، ہمارے دل کے اندر اگر اللہ کی محبت ہے، اگر ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یہ عبادتیں ہی ہمارے تعلق کو اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ذات سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کا یہ ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے تو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھے اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما